علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابعہ اشرف۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے۔ نوجوانوں کے لیے 2 پروگرام لا رہے ہیں۔ اسکل ایجوکیشن کے لیے 1,70,000 اسکالرشپس دیں گے۔ 50,000 اسکالرشپس ہائر ٹیکنالوجیز کے لیے دی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوجوانوں کے لیے اہم ویڈیو پیغام، کہا نوجوانوں کو کاروبار کے لیے 100 ارب کا فنڈز مختص کیا گیا۔ کوشش ہے ہر سال نوجوانوں کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے۔ سندھ میں کورونا کے بڑھتے وار، صوبائی حکومت نے انتہائی سخت فیصلے کر لیے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے رات 8 بجے کے بعد گھروں سے نکلنے پر پابندی، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اہم شاہراہوں پر پولیس ناکے لگائے گی۔ صوبے میں کاروبار صبح 5 سے شام 6 بجے تک کھلے گا۔ مغرب کے بعد پارکس کی لائٹس بند ہوں گی۔ پاکستان میں کورونا سے اموات کا سلسلہ جاری، ایک دن میں مزید 92 افراد انتقال کر گئے۔ مہلک وبا سے اموات کی مجموعی تعداد 20,400 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,253 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا کے 40,726 ٹیسٹ کیے گئے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 4.96% رہی۔ بھارت میں کورونا کی تباہکاریاں تھم نہ سکیں، مزید 3,498 افراد ہلاک ہو گئے۔ 14 اپریل کے بعد پہلی بار کیسز 2 لاکھ سے کم رہے۔ بھارت میں بلیک فنگس کی وبا پھیلنے کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ ماہرین کے مطابق وبا کے دوران بڑے پیمانے پر گندے آکسیجن سلنڈرز اور وینٹیلیٹرز استعمال کیے گئے۔ کورونا وائرس نے دنیا بھر میں مزید 8,882 جانیں نگل لیں۔ 4,42,000 نئے کیسز آ گئے۔ امریکہ نے کورونا ویکسین کی 2 ڈوز لگوانے والے شہریوں کو بغیر ماسک گھومنے کی اجازت دے دی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نیب پر رشوت لینے کا الزام لگا دیا، کہا نیب پیسے لے کر فیصلے کرتا ہے۔ تیسرے سال بھی نیب گردی جاری ہے۔ ملک کو نیب سے زیادہ کسی ادارے سے نقصان نہیں پہنچایا۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا پیپلز پارٹی کو کوئی دعوت نہیں دی گئی۔ فضل الرحمان نے واضح کہا پی پی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں لیگی دور حکومت کے مقابلے میں سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ٹویٹ میں کہا نون لیگ کے دور میں پھیلائی گئی گندگی کو عمران خان کی قیادت میں پرفارمنس کے ذریعے صاف کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال سرکولر ڈیٹ 449 ارب رہا۔ رواں مالی سال میں اب تک سرکولر ڈیٹ 260 ارب روپے تک آ چکا ہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ غربت اور بے روزگاری ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی کو ایک بوند پانی بھی نہ دے سکی۔ رہنما تحریک انصاف علیم عادل شیخ سندھ حکومت پر برس پڑے، کہا وفاقی حکومت کے سندھ میں 162 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ سینٹ کا اجلاس آج بھی جاری رہے گا۔ 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم پر بحث کی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے ٹیکس ترمیمی بل پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنس میں اپیلوں پر آج سماعت ہوگی۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے۔ نواز شریف کے اشتہاری ہونے کی وجہ سے ان کا لیڈر کون ہوگا، آج کی سماعت میں طے کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے نیب کو سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں انکوائری مکمل کرنے کے لیے مہلت دے دی گئی۔ عدالت نے نیب سے 3 اگست تک انکوائری مکمل کر کے رپورٹ طلب کر لی۔ شرجیل میمن کی عبوری ضمانت میں بھی آئندہ سماعت تک توسیع۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت معیشت کی بہتری، عوامی سہولت کی فراہمی کے اقدامات اپوزیشن کی مفادات پر مبنی سیاست کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں حکومت اخراجات میں ریکارڈ کمی، دیگر بے شمار انقلابی اقدامات عوام کے لیے باعث اطمینان ہیں۔ غزہ پر جارحیت اسرائیل کو سیاسی اور معاشی میدان میں مہنگی پڑ گئی۔ سیاسی بحران عروج پر پہنچ گیا۔ حماس کے راکٹ حملوں کے بعد 11 روز تک کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر معطل اور صنعتیں بند رہیں۔ اسرائیلی تاجروں کو $368 ملین کا نقصان۔ مقبوضہ وادی میں صحافی حق کی آواز بلند کرنے کے لیے بھاری قیمت ادا کرنے پر مجبور۔ بھارتی فورسز کشمیریوں کی سوشل میڈیا پر شناخت کے لیے جدید حربیں آزمانے لگی۔ اننت ناگ میں سرکاری سرپرستی میں زمینوں پر قبضہ شروع ہو گیا۔ سندھ اور بلوچستان کے کئی حصے تاحال گرمی کی لپیٹ میں۔ دادو نواب شاہ میں پارہ 45 ڈگری تک پہنچ گیا۔ بالائی علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کراچی میں سمندری ہوائیں مکمل بحال ہو گئیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ سندھ حکومت نے کراچی میں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی میں آج رات 8 بجے کے بعد گھر سے غیر ضروری نکلنے پر پابندی ہوگی۔ کاروبار کے اوقات صبح 5 بجے سے شام 6 بجے تک ہوں گے۔ بیکریاں اور دودھ کی دکانیں رات 12 بجے تک کھلی رہیں گی۔
जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रहेंगी। वज़ीर आला सिंध का कहना है मुल्क भर में जितने भी कोरोना केसेस हैं उनके 50% सिंध में हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। कराची वाले ना माने, सिंध सरकार डट गई, अब कोरोना से बचाव के लिए मजीद सख्ती होगी। कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद साइंस सरकार ने अहम ऐलान कर दिए। नए हुक्मनामे के मुताबिक रात 8 बजे के बाद लोगों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। जरूरी काम या अस्पताल जाने की इजाजत होगी। मगरिब के बाद पार्क्स की बत्तियां बुझा दी जाएंगी। कराची समेत सिंध भर में कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। जुमे और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। शहर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध खुद भी दौरे करेंगे। पुलिस को भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना था मुल्क में मौजूद कोरोना केसेस की 50% सिंध में है। अगर हमने 2 हफ्ते लगाई गई पाबंदियों पर मुकम्मल अमल किया तो आगे आसानी होगी। मामूल के औकात कार की तरफ भी जा सकते हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर कराची के जिला बस्ती के 4 टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुतासरा इलाकों में 6 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज रहेगा। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम इजलास में तालीमी इदारों में तदरीसी अमल के लिए अहम फैसले सुना दिए। एलामिये में कहा गया है कि रवा साल बगैर इम्तिहानात किसी तालिब इल्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम क्लासेस के इम्तिहानात होंगे। पहले 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में लिए जाएंगे। मौसम गर्मा की तातलात कम करने का फैसला सूबे करेंगे। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कमेटी का 29वां इजलास वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में सूबाई वुज़राए तालीम बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान सेक्रेटरीज और तालीमी बोर्ड्स के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कमेटी ने फैसला किया रवा साल बगैर इम्तिहानात किसी तालिब इल्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम क्लासेस के इम्तिहानात होंगे। पहले 10वीं और 12वीं जमात इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में लिए जाएंगे। मौसम गर्मा की तातलात कम होंगी। फैसले सूबे करेंगे। चेयरमैन बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कमेटी शफकत महमूद ने तमाम वफाकी इकाइयों को असातिज़ा, निगरां अमले और दीगर इंतजामी स्टाफ की बर वक्त वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मुश्तरका मफादाती कौंसिल के फैसलों की रोशनी में NCHT और बैक्स के स्टाफ की 30 जून के बाद सूबों को मुंतकली के मामले पर भी कमेटी में तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन कमेटी शफकत महमूद ने कहा इस ज़मन में सूबे जल्दी नोटिफिकेशन करें। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कमेटी में नेशनल एजुकेशन असेसमेंट फ्रेमवर्क को भी सूबों के साथ शेयर किया गया और इसकी उसूली मंजूरी दे दी गई। NIH की वैक्सीन ने सख्त तरीन क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट पास कर लिए। फैसल सुल्तान का कहना है ये हमारी वैक्सीन सप्लाई लाइन की मदद के लिए अहम मरहला है। मावरी खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की चीन की मदद से कंसाइनो वैक्सीन तैयार करने पर NIH को मुबारकबाद भी पेश की है। हुकूमत का कोरोना के पेश नजर अहम इकदाम, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स, टैंक्स, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की दरामद पर टैक्स छूट। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने ड्यूटी की छूट 6 माह के लिए दी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की दरामद पर भी ड्यूटी छूट होगी। मुल्क में गुज़िश्ता रोज कोरोना के मजीद 2253 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 92 अफराद इस वबा के हाथों दम तोड़ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में मजमूई तौर पर 46,726 कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि 2,253 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई। इस तरह मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.82% रही। मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9,05,852 अफराद में कोरोना तशखीस हो चुकी है, जिनमें से 8,23,157 मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दे दी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के मजीद 92 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, जिनमें से 45 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों के वेंटिलेटर्स पर थे। गुज़िश्ता रोज पंजाब में कोरोना के 51, खैबर पख्तूनख्वा में 20, सिंध में 16 और इस्लामाबाद में 1 मरीज जाँ बहक हुआ। मुल्क में इस वक्त कोरोना के मुसद्दिका फाल मरीजों की तादाद 62,295 है, जिनमें 4,723 मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। अस्पताल में दाखिल कोरोना के 522 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने PTM में शामिल जमातों को एक बार फिर करीब लाने की कोशिशें तेज कर दी। शहबाज शरीफ की दावत पर पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने अशाइये में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का खुद इस्तकबाल किया। मेहमानों की गर्मा गर्मी मछली,
टिक्का बोटी, सीख कबाब, बारबेक्यू, प्लेटर, पुलाव और मटन कोरमे से तवाज़ुन की गई। शहबाज शरीफ बिखरी हुई पीडीएम दोबारा बहाल करने के लिए सरगर्म। लीगी सदर अपोजिशन की तमाम जमातों को एक साथ बिठाने में कामयाब हो गए। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं के एजाज में इस्लामाबाद में अशाइया दिया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। अशाइया तकरीब में आइंदा की सियासी हिकमत अमली, बजट इजलास और पीडीएम में पड़ने वाली दरारें खत्म करने पर बातचीत की गई। अशाइये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने शहबाज शरीफ से अलग से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत को टफ टाइम देने पर तबादला ख्याल किया गया। अशाइया तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने हुक्मरान जमात पर कड़ी तनकीद की। बोले, हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत एहतिसाब के नाम पर सियासी इंतकाम ले रही है। गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। बजट सेशन में हुकूमत को टफ टाइम देना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, अपोजिशन को एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात के बजाय हुकूमत की नाकामियों को उजागर करना चाहिए। मुत्तहद होकर हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा। जमीयत उलमा इस्लाम के असद महमूद ने कहा, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भरपूर एहतजाजी तहरीक वक्त की जरूरत है। शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए अशाइये में मेहमानों की गर्मा गर्म मछली, टिक्का बोटी, सीख कबाब, बारबेक्यू प्लेटर, पुलाव और मटन कोरमे से तवाज़े की गई। अशाइये में शरीक अपोजिशन रहनुमाओं ने पीडीएम की दोबारा बहाली पर जोर दिया और हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने के अज़म का इजहार किया। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बहरीन ने कोरोना वबा से निमटने के लिए पाकिस्तान और भारत समेत 5 ममालिक के शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बहरीन ने पाकिस्तान और भारत समेत जिन 5 मुल्कों के शहरियों पर पाबंदी लगाई, उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जिन मुल्कों के शहरियों पर पाबंदी लगाई गई है, वहां पाबंदी का इतलाक आज से हो गया है। बहरीनी शहरी और अकामा होल्डर्स मुस्तस्ना होंगे और बहरीन के शहरियों को वतन पहुंचने पर 10 रोजा आइसोलेशन में रहना होगा। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने रवा साल हज के लिए नए प्रोटोकॉल्स की सिफारिशात पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने इस साल हुजाज कराम की तादाद 60,000 तक महदूद रखी है, जबकि आज़मीन हज के लिए उम्र की हद 18 से 60 साल मुकर्रर की गई है। वजारत सेहत ने बताया कि हज दरख्वास्त गुजार इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि वो हर किस्म की पेचीदा बीमारी से पाक है। डायलिसिस या गुज़िश्ता 6 माह से किसी बीमारी के बायस अस्पताल में दाखिल ना होने का सर्टिफिकेट देना होगा। वजारत सेहत का कहना है कि हज दरख्वास्त गुजार को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें और PCR टेस्ट करवाना होगा। आज़मीन को अपने मुल्क में सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाना होगी, जबकि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक सऊदी अरब पहुँचने से 14 रोज़ पहले लग चुकी हो। वजारत सेहत के मुताबिक आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचने से कबल अपनी हुकूमत की मंजूर शुदा लेबॉर्ट्रियों से PCR टेस्ट करवाना होगा। PCR टेस्ट सऊदी अरब पहुँचने की तारीख 72 घंटे से जायद का ना हो और PCR टेस्ट के बगैर किसी भी मुसाफिर को जहाज पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि हज मकामात पहुंचने पर आज़मीन के मेडिकल सर्टिफिकेट्स, वैक्सीनेशन और PCR टेस्ट की जांच पड़ताल की जाएगी, जबकि सऊदी अरब में मुकर्ररा रिहाइश गाह पहुंचने पर 3 रोज करंतना करना होगा। हज दरख्वास्त गुजार को अपने मुल्क में सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवानी होगी। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक सऊदी अरब पहुंचने से 14 रोज पहले लग चुकी हो। सऊदी वजारत सेहत ने हज बैतुल्लाह के लिए नए प्रोटोकॉल्स की सिफारिशात पेश कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन के लिए की गई कोशिशों में अपना किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अबू ज़ाहबी के वली अहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और फलस्तीन के मामले पर तबादला ख्याल किया और खित्ते में पायदार अमन के लिए तजावीज़ पर गुफ्तगू भी की। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने का फैसला कर लिया गया। काबीना डिवीजन का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक अक्टूबर 2021 से किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए काबीना डिवीजन का कहना है कि वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। बिजली 3 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में महंगी करने की मंजूरी दी गई। ज़राए का कहना है कि माली साल 2020 की चौथी सहमाही की मद में बिजली 82 पैसे फी यूनिट, जबकि पहली और दूसरी माही एडजस्टमेंट्स की मद में बिजली 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई। ज़राए काबीना डिवीजन का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक अक्टूबर 2021 से किया जाएगा।
पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का हजम 116 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गया। मरकजी बैंक के मुताबिक मार्च 2020 तक गैर मुल्की कर्जों की मालियत 109.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। मार्च 2020 के मुकाबले में मार्च 2021 तक गैर मुल्की कर्जों की मालियत में 6.38 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान गैर मुल्की कर्जों की मालियत में 3.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। दिसंबर 2020 को गैर मुल्की कर्जों की मालियत 117 अरब 11 करोड़ डॉलर से जायद हो चुकी थी। रवा माली साल दूसरी सहमाही के मुकाबले में तीसरी सहमाही के दौरान गैर मुल्की कर्जों में 80 करोड़ 60 लाख डॉलर की कमी वाक़ई हुई। मरकजी बैंक के मुताबिक मार्च 2020 तक गैर मुल्की कर्जों की मालियत 109.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। मार्च 2020 के मुकाबले में मार्च 2021 तक गैर मुल्की कर्जों की मालियत में 6.38 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़यात BTV इंफोटेनमेंट में। थाईलैंड में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को कुरानंदाजी के जरिए बतौर तोहफा देने का ऐलान। वैक्सीन लगवाने वालों को किस तोहफे से नवाजा जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। थाईलैंड के सूबे चिंग माई के जिला माइचिम में कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी लाने के लिए एक मुनफरिद मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम के मुताबिक चिंग माई के जिला माइचिम में हर हफ्ते कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के नामों की कुरानंदाजी की जाएगी, जिसे जीतने वाले खुश नसीब को गाय मुफ्त में दी जाएगी। थाईलैंड के इस जिले में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती वैक्सीन मुहिम का आगाज 7 जून से किया जाएगा। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। पाकिस्तान ने पाकवैक के नाम से पाकिस्तान की पहली वैक्सीन तैयार कर ली। वैक्सीन की तैयारी में चीनी कंपनी कैंसाइनो बायो से मदद ली गई। इस ज़मन में वैक्सीन साजी के तमाम मयारात पर सख्ती से अमल किया गया। मकामी तौर पर वैक्सीन की तैयारी से कोविड-19 को काबू पाने के लिए पाकिस्तान को दीगर ममालिक पर इन्हिसार से निजात मिल सकेगी। इस साल फरवरी में चीन की जानिब से अतिया करदा वैक्सीन के बाद मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस ज़मन में पहले सेहत से वाबस्ता डॉक्टर और दीगर अमले को वैक्सीन लगाई गई थी, जिसके बाद बुजुर्ग शहरियों और अब 30 साल से ज्यादा दरमियानी उम्र के पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन जारी है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक मुल्क में 50 लाख अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और इसकी लीडरशिप इस ज़मन में मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने चीन की मदद से कैंसाइनो वैक्सीन बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मावन बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अपने ट्वीट में कहा, डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक वैक्सीन ने तमाम सख्त मयारात और टेस्ट के मराहिल को पास कर लिया है, जो वैक्सीन सप्लाई लाइन की मुसलसल फरहामी में एक अहम संग मील भी है। वजारत सेहत के एक अफसर के मुताबिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुआहदे की रूह से NIH हर माह वैक्सीन की 30 लाख खुराकें तैयार करेगा। इस ज़मन में पहली खेप माह रवां के आखिर तक दस्तयाब हो सकेगी। इस ज़मन में माहिरीन को खास तरबियत फराहम की गई है, जो NIH के प्लांट में कैंसाइनो वैक्सीन की खेप तैयार करेंगे। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा अलीज़े शाह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अदाकारा अलीज़े शाह ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो पोस्ट की है। अदाकारा की जानिब से पोस्ट की जाने वाली वीडियो में अलीज़े साहिल समंदर के किनारे पर चल रही हैं और सूरज की रोशनी इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा है। मद्दाहों की जानिब से अदाकारा की वीडियो को बहुत पसंद किया जा रहा है और कमेंट में अदाकारी के हुस्न की बहुत तारीफ की जा रही है। इससे कबल भी अदाकारी की वीडियो वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि वो मेकअप रूम में मौजूद है और बहुत खुशगवार मूड में गाना गा रही हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा और मॉडल मिनाल खान को सबसे ज्यादा किससे खुशी मिलती है, अदाकारा ने मद्दाहों को बता दिया। अदाकारा मिनाल खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। मिनाल खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो स्याह रंग की शर्ट जेबतन की हुई हैं, जो इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करदा तस्वीर के कैप्शन में अदाकारा ने मद्दाहों को बताया कि इतवार का दिन इन्हें खुशी देता है और वो इस दिन बहुत खुश होते हैं। इससे कबल अदाकारा मिनाल खान की शोबिस अदाकारों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अदाकारा मिनाल खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उनके साथ अदाकारा सुबूर अली और अरीबा हबीब को देखा गया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के नामवर अदाकार हमजा अली अब्बासी की अहलिया और साबका अदाकारा नेमल खावर खान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक बार फिर तस्वीर शेयर की है,
जिसे सार्फिन की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है। अदाकारा हमजा अली अब्बासी की अहलिया और साबिका अदाकारा नेमल खावर खान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक ब्लर तस्वीर शेयर की है। नेमल खावर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी इस ब्लर तस्वीर के साथ हमजा अली अब्बासी के हमरा ली गई एक सेल्फी भी शेयर की, जिसमें वो दोनों खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं। पुरकशिश नेमल खावर खान की फैन फॉलोइंग न सिर्फ शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने के बाद बरकरार है, बल्कि इनके मद्दाहों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने अदाकारा नौशीन शाह को आड़े हाथों ले लिया। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने इंतहाई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी वालदा रोज शादी का कहती हैं। पाकिस्तानी अदाकारा नौशीन शाह चंद रोज कबल यासिर हुसैन की जानिब से शादी में बिन बुलाए मेहमान बनकर आने के बयान पर सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। ताहम अब अदाकारा के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन ने नौशीन शाह को आड़े हाथों ले लिया और पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दे दिया। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने इंतहाई नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो आपकी वालदा रोज शादी का कहती हैं, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, माफ कर दो और मेरी जान छोड़ो। अदाकारा की इस पोस्ट पर डिजाइनर उमर सईद ने कहा कि जब कोशिशों के बावजूद भी शादी ना हो तो इज्जत बचाने के लिए यही कहना पड़ता है, जिस पर नौशीन शाह ने एक बार फिर गैर इखलाकी जुबान का इस्तेमाल किया। अदाकारा की इस पोस्ट ने बहुत से पाकिस्तानियों को न सिर्फ मुश्तइल कर दिया, बल्कि सार्फिन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर माँ ने जान छोड़ दी तो जान ही नहीं रहेगी। एक और सारिफ ने कहा, आप पाकिस्तान छोड़ दें, जब सामने इस तरह बात करती हैं तो पीछे क्या करती होंगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने PSL से बाहर होने पर शदीद दुख का इजहार किया है। क्रिकेटर का कहना था कि मैं ग्रुप के तमाम मैसेजेस देखकर हिदायत पूरी करता हूं, पता नहीं ये मैसेज क्यों नहीं देख पाया। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, क्रिकेट मेरी जिंदगी है और मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसा महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान सुपर लीग PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले नसीम शाह ने ट्विटर पर दिल शिकस्ता पैगाम शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने PSL के लिए बहुत मेहनत की, मैं इवेंट के लिए बहुत पुरजोश था। क्रिकेटर का कहना था कि मैं ग्रुप के तमाम मैसेजेस देखकर हिदायत पूरी करता हूं, पता नहीं ये मैसेज क्यों नहीं देख पाया। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, क्रिकेट मेरी जिंदगी है और मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसा महसूस कर रहा हूं। नसीम शाह ने आखिर में कहा कि अल्लाह मुझे मजबूत बनाएगा और मैं वापस आऊंगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कल मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। चांद जमीन से करीब होने के बायस सुपर फुल मून भी होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में दिन होने के बायस दिखाई नहीं देगा। 26 मई के चांद को सुपर फ्लावर बेल्ट मून का नाम दिया गया है। चांद ग्रहण के दौरान 14 मिनट के लिए चांद सुर्ख रंग का नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज दिन में 1:48 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर होगा। इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान में दिन होने के बायस दिखाई नहीं देगा। शहर कायद का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। शहर में 30 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, अलबत्ता बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया है। शहर में 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिबी हवा चल रही है। आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, अलबत्ता बारिश का कोई इम्कान नहीं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।